Good Very good morning, ma'am. morning. Everybody seems to be very Ma'am. hung up today. What's it? There's no Morning, party Deepti. Good time. morning. I think Sarita ji's good morning Sarita ji. hasn't हाँ, happened. Sarita Good ji. morning, ma'am. Sarita ji, good morning hasn't happened. Good morning, Yeah. Poonam. Good morning, ma'am. Good morning, Very good everyone. morning. And today we have a beautiful chapter. Of course, we'll continue doing love Good morning. in the other book practices. And but then, like it's a beautiful way of explanation that Florence Scovel Shinn has given to us in multiple ways, explaining about love in terms of relationship and in terms about life. और मैजिक बुक में आज हमारा क्यू द मैजिक चैप्टर है. सो आज पूरे दिन हंसते खेलते ही बीतेगा बिकॉज क्यू द मैजिक इज अ गेम. है ना, उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दैट लाइफ इज प्लेफुलनेस. सो बिकॉज यूनिवर्स लाइक्स प्लेफुल किड्स. कभी चैलेंज करो, कभी यूनिवर्स के साथ बदमाशी करो, कभी उनको धमकी भी दे दो, कभी उनको खूब सारा प्यार दो. इस तरह से होना चाहिए. है ना, उसके पहले हम अपनी प्रेयर्स कर लेते हैं सुबह, जो हम नॉर्मली करते हैं. सबसे पहले we'll start with a magical air that we breathe. So just sit straight, shoulders rolled back and chin up, back straight. Inhale gratitude. Exhale love to the whole world. Inhale gratitude. Exhale love to the whole world, to the whole globe. Slowly inhale gratitude in your abdomen. Exhale love to the whole globe. Inhale gratitude. Exhale love. Slowly inhale gratitude. Exhale love to the whole world. Join your hands. हाथ जोड़िए और बोलिए, Thank you for the magical air that I breathe. Thank you for my beautiful human life. Every moment of my life is a celebration. Thank you for all the money. Thank you for my most amazing relationships. Thank you for my work. Thank you for all my travels. Thank you for my beautiful home. Thank you for the city I live in. You can take the name of your city. Thank you for my beautiful, prosperous country, India. Today is a day of completion. I give thanks for this amazing day. Miracles follows miracles, and wonders are overflowing in my life. Once again, today is a day of completion. I give thanks for this amazing day.
Miracles follows miracles, and wonders are overflowing in my life. One last time. Today is a day of completion. I give thanks for this amazing day. Miracles follows miracles, and wonders are overflowing in my life. I'm super excited to enter into this new beautiful day. Thank you, thank you, thank you. Slowly open your eyes and be ready for the chapter of the magic book. सो अभी भी ब्रह्म मुहूर्त ही चल रहा है एटलीस्ट दिल्ली में, है ना। ब्रह्म मुहूर्त करीब 45 मिनट सनराइज के पहले खत्म होता है। तो उस हिसाब से अभी सनराइज तो दिल्ली में 7 बजे के बाद होती है। तो मैम यू आर ऑन म्यूट। मैम एग्जिट हो गए हैं। नहीं मैम, है तो सही। Yeah, ma'am is on mute. I got disconnected. I'm connected back. Okay. So we'll start with this beautiful chapter, which is the magic cue, which means हमने फ्लोरेंस कॉवल शिन की किताब में ये पढ़ा था 2 दिन पहले, आई थिंक संडे वाले सेशन में। संडे को हमने पढ़ा था जब उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज जब आपकी लाइफ में आ रही है, आपको दिख रही है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, बट समथिंग दैट यू वांट, उसके लिए बस चुपचाप थैंक यू बोल दो, बिकॉज वो रास्ता खोल रही है आगे और चीजों के आने का। Which means she had mentioned on Sunday that anything that you see in your life, even if it is not good, suppose you see a broken car on the road also, okay, it really doesn't matter. It is a sign that there is a car which is coming into your life. Okay, and what is your attitude towards it will decide the coming of that thing into your life. है ना। जैसे उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया था कि ब्रोकन डिशेस मिली थी, उसको डिशेस चाहिए थी, नई डिशेस खरीदनी थी अपने घर के लिए, तो उसको ब्रोकन डिश मिली। मतलब जब वो लेने गई या वो ब्रोकन थी घर में, तो वो फीमेल बोलती है कि वाई डिड आई रिसीव द ब्रोकन डिश, मैंने तो अच्छी डिशेस मांगी थी और मुझे तो नई डिशेस चाहिए थी। फिर फ्लोरेंस कॉवलशिन ने उनको समझाया कि आपकी चेकिंग हो रही है ये यूनिवर्स के रेल में, दैट व्हाट इज योर एटीट्यूड राइट नाउ। कोई भी चीज अगर आपकी जिंदगी में जो आपको चाहिए, एंड इफ यू हैपन टू सी इट वेदर इट इज ब्रोकन और होल और न्यू और वट एवर कलर, means that thing, your life is opening up into receiving that particular thing. So don't say that it is good, it is bad. Everything that your attention goes to, हर चीज जिस पे आपका अटेंशन जाता है, सपोज आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको एक लाइक कोई भी व्हीकल नजर आती है या कुछ और दिखता है, लाइक अ बर्ड, दैट मीन्स आपकी जिंदगी में दैट सेंस ऑफ फ्रीडम आने वाली है। इट कुड बी दैट कोई पैसे की बात कर रहा है ऑन द रोड, यू वॉकिंग समवेयर और यू आर एट सम पब्लिक प्लेस एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट मनी एंड दे आर सेइंग आई रिसीव सो मच मनी, और ये है और उसको देना था, ये लेना था, इस तरह की बात कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू से थैंक यू फॉर द मनी। Okay, that is how you will be receiving that money into your life. Now, suppose if you see an ATM, ATM is जहां से हम पैसे निकलवाते हैं। सो आपको अपने बैंक्स के लिए, पैसे के लिए और एटीएम मशीन के लिए थैंक यू बोलना है। इस तरह से जो चीज आपकी आंखों के सामने आ रही है, आपको उसमें बहुत ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी देनी है। दैट इज वॉट इज अबाउट टूडेज सेशन, सो वील जस्ट रीड इट। सो इसमें यही होता है दैट यूनिवर्स हमेशा कहते हैं ना, यूनिवर्स बहुत दयालु होते हैं,
तो हमेशा वो सारी चीजें हमारे सामने लेके आते हैं सिर्फ इसलिए सो दैट हम अपनी इतनी अच्छी एनर्जी उसको दें सो दैट द डोर ओपन्स अप एंड दिस इज व्हाट इज today's chapter. Okay, after this we will be reading about a beautiful content in the love, so let's just start reading. And Neha is reading for us. Megha ma'am. Megha, Hello ma'am. okay. Megha. Okay, hi Megha. Hi. Hello ma'am. Hello everyone. Morning. Yeah, please start reading. Day 25. Cue the magic. क्यू द मैजिक, इसका हिंदी में मतलब होता है जादुई संकेत। तो मैजिक वाला क्यू मिलेगा, संकेत मिलेगा। आज आपको संकेत वो मिलेगा कि आपकी जिंदगी में ये आने वाला है और अच्छी अच्छी चीजें। बस उसके लिए हमको थैंक यू बोलना है। जैसे ये इसमें है ना, डायरेक्टर वो क्लैप करता है, चेयर जो क्लैप करते हैं ना कोई किसी भी शॉट के पहले। ऐसे बहुत सारे शॉट्स आपकी आपकी लाइफ में आज पूरे दिन आते रहेंगे। जस्ट बी अवेयर, बी माइंडफुल एंड से थैंक यू, है ना। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर माई फ्रीडम, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। दैट वे, थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट आई रिसीव इन माई लाइफ। जैसे आपको कोई भी नजर आता है, दे आर वॉकिंग हैंड इन हैंड विथ ईच अदर, है ना, मतलब प्यार ही तो है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ओ कैसे पब्लिक डिस्प्ले करते हैं, शर्म भी नहीं आती, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दैट, अगर आप ऐसे बोलोगे कि इनको शर्म भी नहीं आती, कैसे पब्लिक डिस्प्ले करके चिपक चिपक के चल रहे हैं सड़क पे, कोई शर्म नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। इसका मतलब है अगर वैसे आपने बोला तो आपकी जिंदगी से जितना भी प्यार आने वाला होगा ना, बच्चों से भी प्यार नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमने बहुत नेगेटिव एनर्जी दी है लव वाली फीलिंग को, है ना। तो इंस्टेड वी हैव टू से थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड अबंडेंस इन माय लाइफ, इस तरह से। दैट इज हाउ वी हैव टू बी लाइक। तो हर चीज के लिए रिमेंबर, नो, आई यूज माई लाइफ ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। ये कभी भूलना नहीं होता। बहुत सारी चीजें हमने इस किताब से सीखी है, ये कभी भूलना नहीं होता है। तो आज हमको वही सीन कैप्चर करने होंगे। हाँ जी। Quote. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Unquote. Flora Colau, B. 1954, writer and therapist. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home,
It's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desire on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Cue the Magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for all the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you.
One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become. And the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मेघा, थैंक यू सो मच। आपका नाम जैसे मेघा है ना, वैसे जैसे अमृत वाली बारिश गिरती है ना, वैसे आप पढ़ रहे थे। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। सो वीव हर्ड अबाउट लाइफ इज प्लेफुलनेस। सो आज वाले चैप्टर में हमको पूरे दिन लॉस्ट होने का स्कोप नहीं होगा। वी हैव टू बी मेंटली अवेयर एंड वी हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, तभी तो हमको दिखेगा, है ना। तो क्यू द मैजिक चैप्टर तो जब पहला कदम हमारा रखता है सुबह सुबह, जब हम व्हेन वी पुट डाउन आवर फीट ऑन द फ्लोर, देन इट स्टार्ट्स, इजंट इट। मतलब कोई भी चीज ऐसे जैसे नॉर्मली होता है ना डे टू डे में कि अगर कोई चिल्ला रहा है, सपोज आपको बाहर से किसी के येल करने की आवाज आ रही है, somebody is yelling, somebody is screaming, तो एकदम से आपको लगता है कि क्या हो गया, दैट पर्सन इज गॉन मैड, क्या सुबह सुबह चिल्ला रहा है ना। सो वो दैट इज अ नेगेटिव एनर्जी। अब हमारी लाइफ यूज नहीं हो रही है ब्लेस हील एंड प्रॉस्पर के लिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि किसका दिमाग खराब हो गया है, somebody is gone crazy, इतना जोर से चिल्ला रहा है। सो इंस्टेड व्हाट वी नीड टू से, थैंक यू फॉर माई वॉइस, thank you for my voice. This is what this chapter is teaching us. This chapter has come so much towards the end because it is not very easy to do. ओके उन चीजों के लिए जो चाहिए उसके लिए तो बहुत आराम से हो जाता है, बट जिन चीजों से आप इरिटेट हो रहे हो, सपोज द फ्रिज इज नॉट कूलिंग प्रॉपरली, उसमें कूलिंग ठीक से नहीं हो रही है, आपको लग रहा है आपका सामान खराब हो रहा है और ठंडा नहीं कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि क्या हो गया फ्रिज को, ठंडा नहीं कर रहा, फिर से खराब हो गया, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू फॉर द रेफ्रिजरेटर फॉर कीपिंग द फूड फ्रेश एंड थैंक यू टू ऑल माई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये वाला एटीट्यूड चाहिए होता है। सो दिस एटीट्यूड हैज टू गेट इनकलकेटेड स्लोली, बिकॉज ये प्रोसेस के हिसाब से होगा, है ना। बिकॉज हमारे मुंह से बहुत आराम से किसी के लिए नेगेटिव चीज निकल जाती है, स्पेशली अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है तो। बट देन टू स्पीक गुड अबाउट दैट, आई मीन लाइक इट, बिकॉज सी Rhonda Byrne and all the other authors have always taught us that everything in this universe is about energy, frequency, and vibration. So giving the positive energy, it's not positive, it's that high frequency energy, let's just call it that. Positive, negative तो समझ में नहीं आता है अभी. So high frequency energy or a high vibe, high vibration, that is what will turn around the situation. अगर आपको उसको turn around करना है, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे कई बार होता है कई लोग बड़े पब्लिक डिस्प्लेस कर रहे थे, they are kissing in public and they are holding their hands in public and all of that. So if somebody is doing that, you have to say thank you for all the love coming into my life instead of getting irritated. तभी तो आपका बहुत सारा प्यार आपको छप्पर फाड़ के मिलेगा अगर आपने ऐसे बोला है तो, है ना। तो कोई भी चीज अगर अगर कोई व्हीकल दिखती है, थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल। अगर किसी नेबर ने कोई नई गाड़ी खरीदी है जो आपको चाहिए थी एंड यू डोंट गेट अलोंग विद दैट नेबर, तो आपको लगेगा ये क्या काला पैसा है इसके पास, ऑल द ब्लैक मनी कमिंग, एंड एक के बाद एक गाड़ियां खरीद रहा है, या अरे ये तो दहेज की कार है वो लेके घूम रहा है, इसने कौन सी अपने खुद की खरीदी है। सो दिस इज हाउ वी नॉर्मली टॉक, है ना। सो नाउ वी हैव टू चेंज द लैंग्वेज इन विच वी टॉक। इट रियली डजेंट मैटर कहाँ से कार आई है, आपको अच्छी लगी ना, उसका कलर बहुत अच्छा है, दिल खोल के अप्रिशिएट करो that thank you for this beautiful car and thank you for my car. Till the time you don't say thank you in advance for something that you want,
है ना? जब तक आप एडवांस में थैंक यू नहीं बोलते हो जो चीज़ आपको चाहिए, तब तक वो चीज़ नहीं आती है. सपोज somebody says that I'm going to Europe on a travel, or I'm going on a New Year holidays, or I'm just going out for 3 days to this exotic location, and you are like, you know, that अरे ये तो every now and then this person is traveling so much. So instead of saying that, thank you for all my travels, thank you for my travel to Europe and this place and that place and Missouri and whatever. That is how you have to say. Okay, instead of giving any kind of a low frequency energy या irritate होने की बजाय आप हमेशा high frequency energy दो किसी भी चीज को. That will start opening up the ways in your life, and that is how it is. है ना? Instead of saying anything negative or thinking anything negative. So Cue the Magic chapter जो होता है इसमें, जैसे रॉन्डा बर्न ने लिखा हुआ है, it thrills and amazes me how the universe uses people, situations and circumstances to bring those things to me which I need to say thank you for. मतलब आपको जिन जिन चीजों के लिए थैंक यू बोलना है, वो चीजें आपके सामने यूनिवर्स जबरदस्ती लेके आता है. पता है आपको? आप माइंडफुल हैं, हम ख्वाबों में तो नहीं खोए हुए हैं उस वक्त. That will make a difference to, are we really being aware, are we being in that present moment, being alert and noticing that particular thing that has come in front of our eyes. है ना? We have to notice that somebody is wearing a lovely jacket. Suppose that you love leather jackets. Somebody just passes through and that person is wearing a lovely jacket. So instead of saying कि यार मैं भी इतने टाइम से सोच रही थी खरीदने की, instead of that just say what a lovely jacket. है ना? रॉन्डा बर्न की वो स्टोरी पता है हमको, जब उन्होंने वो फ्रेंच स्कर्ट खरीदी थी, कि वो ऑस्ट्रेलिया में थी, सिडनी में थी, तो वो ड्राइव करके जा रही थी, तो एकदम से उनके सामने जो साथ में जो बंदा था कार में, वो खुद ड्राइव कर रही थी, साथ में जो बंदा था वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था या कुछ ऐसे कुछ था. तो वो उसकी सेफ्टी के लिए प्रे कर रही थी. फिर एकदम से उनको यू टर्न लेना था, तो वो उनको गाड़ी स्लो डाउन करनी पड़ी बिकॉज वो आदमी ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा था. लड़का था, यंग गाय, तो वो बहुत रैश कर रहा था. तो उन्होंने उसको सेफ्टी की ब्लेसिंग देके उन्होंने वहीं से उनको यू टर्न लेना था, लास्ट लेन में. यू टर्न तो आप तभी लोगे ना जब आप लास्ट डिवाइडर के साथ वाली लेन में होते हो. तो वो इस लेन में आई और उन्होंने यू टर्न लिया और वो रुक गई वहां पे, क्योंकि शी वांटेड टू बी जस्ट बी सेफ. और तब उनकी नजर पड़ी एक शोरूम में, मार्केट बंद था. शोरूम में जो मैनिक्विन ने एक स्कर्ट पहनी हुई थी, तो उनको वो स्कर्ट इतनी ज्यादा पसंद आई. देन शी सेड दैट आई गेव अ लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू दैट स्कर्ट. मतलब इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि काश मेरे पास आ जाए, ये आ जाए, वो जाए, वैसे नहीं कि बहुत सुंदर स्कर्ट है एंड इट इज सो लवली एंड दिस एंड दैट. और इतना सारा एनर्जी ऑफ लव उन्होंने उस स्कर्ट को दिया. उसके बाद वो चली गई जहां उनको जाना था. सुबह सुबह का टाइम था. जब दोपहर को वो शोरूम खुला, then Rhonda Byrne went back to that shop and she asked for that skirt that mannequin was wearing, and वो less than half the price पे थी. Can you believe it? और वो एक ही पीस आया था. फिर उन्होंने स्टोर कीपर से कहा, where did you get this skirt from? कहाँ से आई है ये? So then the shopkeeper said that we don't know, we had never ordered it. It was a consignment that had come from Europe, फ्रांस से पूरा एक बॉक्स आया था, कंटेनर. उसमें ये वाली स्कर्ट आई थी, हमने ऑर्डर नहीं किया था. तो ये बस ऐसे ही एक ही पीस पड़ा हुआ, ये आ गई थी हमारे पास. एंड सिंस इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, वी आर सेलिंग इट एट अ सुपर प्राइस. और उसको सुपर सेल पे उन्होंने डाल दिया था. एंड शी गॉट दैट स्कर्ट. है ना? शी गॉट इट बिकॉज शी गेव एन एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव. नहीं तो नहीं आती है. अगर आप अपनी कोई फेवरेट कार देखोगे और आप कार्स के बारे में, किसी और की गाड़ी के बारे में बुरा सोचोगे, करोगे, तो हमारी कार हमसे और दूर चली जाएगी. So if you see a beautiful house, just admire it. है ना? If you see a plant which is dying, है ना? मतलब कोई प्लांट है वो मर रहा है, सूख रहा है, तो instead of like saying कि अरे ये प्लांट तो मर रहा है, instead say that thank you for all the beautiful plants and trees. That is how we need to be like. एनर्जी, हमारी नेगेटिव चीज हमारे मुंह से ना निकले, उतनी कोशिश करो. दैट बी दैट पर्सन दैट यू यूजिंग योर लैंग्वेज ओनली फॉर हीलिंग, ब्लेसिंग एंड प्रॉस्परिंग. So you're not using a life for anything else. Okay, when you become this kind of a person, we will see that life will start showering blessings on us. और जब यूनिवर्स हमको ब्लेसिंग शावर करते हैं तो हमारी जिंदगी के मायने ही अलग हो जाते हैं. Then it is like you could be called as an alchemist who everything that you touch turns into gold. Wherever you go, you see prosperity happening.
आप देखते होगे ना, मतलब हमारे ग्रुप में से इतने सारे लोग हैं जिन्होंने एक कॉमन एक्सपीरियंस बताया है मुझे, दैट वेन एवर वी एंटर अ स्टोर वी आर द ओनली वन जो बिलिंग काउंटर पे होता है, एंड बाय द टाइम आप पीछे मुड़ के देखते हो तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है बिलिंग की, उस दुकान में लोग ही लोग आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। दैट इज योर एनर्जी इज पुलिंग प्रोस्पेरिटी, यू नो दैट, है ना। कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप वेजिटेबल्स भी खरीदने गए हो, यू आर द ओनली वन एट द वेजिटेबल वेंडर्स प्लेस इन द वेजिटेबल स्टोर, उसके बाद धीरे धीरे आपको सब सब्जियां खरीद रहे हैं उसी से। तो ये आप लोग की एनर्जी होती है। जब हाई वाइब्रेशन वाले लोग कहीं पे भी जाते हैं, दे स्टार्ट पुलिंग इन पीपल, और वहां की सेल बढ़ जाती है। सब कुछ एनर्जी का खेल होता है। तो इसीलिए अपने आप को हाई वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रखना, ये एक मसल है जो आपको बनाना पड़ेगा, मेंटल मसल है, हैबिट है। और एक बार आदत पड़ गई, देखो सबकॉन्शियस को ना नेगेटिव सोचने की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो आपको उस पे उसको उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा रेपिटेशन के कारण। तो इसीलिए कोई भी चीज आज आपको दिखती है, ये किसी शब्द से भी आ सकता है, हो सकता है मैंने कोई वर्ड बोला हो, वो आपने कैच कर लिया, इसका मतलब है वो आपकी जिंदगी में आने वाला है ना। अगर आपने उसको अटेंशन दिया अप्रिसिएशन के साथ में, अप्रिसिएशन के साथ अगर अटेंशन दिया, तो आपकी जिंदगी में वो आ जाएगा। इट इज एज ब्यूटिफुल इज दैट। अगर आपने मेरा वो वेकेशंस वाला या हॉलीडेज वाला ट्रैवल वाला वर्ड कैच किया, इसका मतलब थैंक यू फॉर ऑल माई हॉलीडेज, इमिजिएटली आप कर दो। तो उसके साथ, क्योंकि मेरे मुंह से भी अगर आवाज सुनी तो क्यू द मैजिक तो मेरे थ्रू भी आ सकता है ना आपके पास। इस तरह से करना है ना। कोई भी चीज एकदम से लाइट ऑन किए बल्ब फ्लिकर कर रहा है अगर, है ना, बल्ब ठीक से नहीं चल रहा, वो ऐसे बुझता बुझता जल रहा है, सो थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल इलेक्ट्रिसिटी एंड सो मेनी लाइट्स इन माई हाउस दैट लिट्स अप माई होल हाउस। ऐसे बोलना है कि थैंक यू बिजली के लिए, और बिजली से चलने वाली सारी लाइटों के लिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए जो मेरे घर में बहुत काम आते हैं, थैंक यू फॉर दैट। तो इस तरह से एनर्जी देनी है। गीजर में कुछ गड़बड़ लग रही है, कम पानी आया, ज्यादा आया, टैप में कम आया, थैंक यू टू ऑल माई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड माई ब्यूटिफुल गीजर जिसमें से गर्म पानी आता है, तो मैं बहुत आराम से आई कैन टेक अ शावर, आई कैन टेक माई बाथ। सो दैट इज वॉट इट इज। अपने शू क्लोजेट को देखते हो, अगर आपको लग रहा है कोई जूता आपका खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो थैंक यू फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल शूज एंड थैंक यू फॉर माई दिस शू। इस तरह से। सो इसमें लिखा हुआ है दैट यूनिवर्स आपके सामने डेलिबरेटली वो चीजें लेके आता है ताकि आप थैंक यू बोलो, बिकॉज यूनिवर्स बहुत दयालु है। इट नोज दैट टिल द टाइम यू डोंट गिव दैट एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड टू इट, दैट थिंग विल नॉट कम इन टू योर लाइफ। और आपको तो वो चीज चाहिए, है ना। यूनिवर्स को ये तो पता ही होता है कि आपको वो चीज चाहिए। जैसे आपको लविंग पार्टनर चाहिए, तो यूनिवर्स बार बार जोड़ों को लेके आएगा, दो दो जने, आपके सामने आएंगे, और बार बार ऐसे कपल्स दिखते रहेंगे। सो यू हैव टू से थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर। दैट इज हाउ टूडेज प्रैक्टिस इज अबाउट। पूरे दिन इसमें तो लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए लिखा हुआ है दैट आज पूरे दिन 7 मैजिकल क्यूज हमको लेने हैं, बट हमको 7 नहीं लेने हैं, आज हमको ये नंबर 100 के ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, पूरा दिन सैचुरेट कर दो ग्रेटिट्यूड ढूंढने में। आप रोड पे जा रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, कोई इंस्टा पोस्ट आपके पास आया, मतलब एकदम से आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या कोई रील देख रहे हो किसी की, और आपको कोई ऐसा कंटेंट मिला, आप उसके लिए थैंक यू बोल दो। ठीक है, कोई आपको ऐसे गाने की आवाज आई, थैंक यू टू माई ब्यूटिफुल वॉइस एंड थैंक यू टू द म्यूजिक। ओके, अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है या न्यूज़पेपर आपने खोला है, उसमें कोई एड दिख रहा है आपको, उस एड में लोग बस टोस्ट कर रहे हैं या अच्छा मील खा रहे हैं, थैंक यू फॉर ऑल द मील्स आई हैव हैड इन द बेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स। सो दैट इज हाउ वी हैव टू बी। सपोज अगर आपका अटेंशन किसी के फर कोट पे गया, एड में कोई फर कोट पहन के कोई लड़की है और वो चाय का एड है ना, सो थैंक यू फॉर द मॉर्निंग फ्रेश कप ऑफ चाय दैट आई हैव एवरी डे, आप ये बोलो। और उसका फर कोट की तरफ अगर आपका नजर गया है, तो आप बोलो थैंक यू फॉर ऑल द वुलेंस इन माई वार्डरोब, थैंक यू फॉर द फर कोट। दैट वे, इस तरह से हमको कहना है, किसी भी चीज को अगर आप ग्रेटिट्यूड और लव की एनर्जी देते हो, वो मल्टीप्लाई होके आपकी जिंदगी में वापस आती है, और वो बहुत अनरियलिस्टिक तरीके से आती है जो आपने सोचा भी नहीं था। दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। आज का चैप्टर बस यही है ना, कि बस यूनिवर्स बार बार, और स्पेशली जो नेगेटिव सिचुएशन है, जैसे मैंने बताया कि वो प्लांट इज डाइंग, गीजर में पानी नहीं गर्म आ रहा, फ्रिज ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू फॉर ऑल माई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल क्लाउड्स, थैंक यू फॉर द सनशाइन इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर ऑल द गुड न्यूज दैट आई हैव रिसीव्ड। कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, थैंक यू फॉर द एवरी डे दैट आई हैव अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। डोंट वी, मोस्ट ऑफ अस एटलीस्ट, लाइक शुरू शुरू में भी एकदम से
5 मिनट बाद भी 6:05 तक भी हमारे पास 100-110 लोग होते ही हैं हु आर वेरी रेगुलर एंड वेरी कंसिस्टेंट, है ना। मतलब उनके लिए कोई सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, इट रियली डजेंट मैटर, दे आर एवरी डे देयर एट 6 o'clock लॉग्ड इन। सो इट्स नॉट दैट उनकी जिंदगी में कोई बड़ा इजी है सुबह उठना, नो, उन्होंने कंसिस्टेंसी और एनर्जी का मतलब समझ लिया है, इसलिए उनकी अपने आप आंख जागती है, अपने आप आंख खुलती है और वो कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कितने भी उसमें हो, तबीयत उनका ऊपर नीचे है, उनका कुछ ऊपर नीचे है, बट 100 to 110 people are always there earliest. Of course, slowly people join in, and by the time 7 बजता है तब तक काफी सारे लोग हो जाते हैं, बट देर आर पीपल, और ये बहुत बड़े, कहते हैं 1 is the mother of 10,000। सो सोचिए कि आप इतने सारे लोग हैं तो 10,000 into 10, इतने लाइफ आप इमिजिएटली इम्पैक्ट कर सकते हो अपनी जिंदगी के थ्रू। सो दैट इज द काइंड ऑफ लाइक कोई भी चीज। सो थैंक यू फॉर माई कंसिस्टेंसी, तो अब मैं ये बोलूंगी, है ना, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो कंसिस्टेंट है सुबह 6 बजे। थैंक यू फॉर माई पंचुअलिटी, माई डिसिप्लिन एंड माई कंसिस्टेंसी, है ना। ये मैजिक क्यों मेरा निकला उस चीज की वजह से, जो हमने मैजिक क्यूज अभी पढ़े, दैट वे। सो दिस इज हाउ इट इज। मैं जैसे अभी लॉग आउट हो गई थी, ऑटोमेटेड लॉग आउट हो गया था, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं छुआ, आई जस्ट लॉग्ड आउट। So thank you for the beautiful, wonderful, so fast Wi-Fi. This is what I will say instead of saying that ये क्या Wi-Fi कभी भी बीच में चला जाता है, ठीक है। Instead of saying that, thank you for the beautiful and so fast Wi-Fi. So this is how you have to be. This is how you have to conduct yourself. So यही आज की practices हैं। Early morning, count my blessings, जो हम कर चुके हैं। We start a day with minimum 10 blessings, and रात को सोने के पहले फिर से gratitude में सोते हैं, because morning and night दोनों टाइम हमारा mind बहुत काम होता है और clean slate होती है, तो आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो। इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग जब आपकी स्लेट क्लीन होती है तो आप ग्रैटिट्यूड वाली चीजें लिखो, अच्छी चीजें लिखो उस पे। दैट्स व्हाट इट मीन्स, है ना। तो सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स में जो जो चीजें हमारी जिंदगी में हैं उनके लिए हम थैंक यू बोलते हैं, जो चाहिए उसके लिए नहीं, वो तो ड्रीम लिस्ट में है ही, वो तो पढ़ना ही है हमको रोज, ठीक है। लेकिन जो है हमारी जिंदगी में, जिनको हमने नजरअंदाज किया हुआ है, जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पढ़ेंगे आज वो लव वाले चैप्टर में कि कैसे वो फीमेल थी, तो उसको वो मैरिड थी और उसका बहुत अच्छा हस्बैंड था, कहती है आई लाइक मुझे तो शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता, वो ऐसे बोलती थी, मतलब इतनी अच्छी उसकी शादी चल रही थी, बहुत लविंग पार्टनर था, सोबर रहता था, सब था, बहुत प्यार देता था वैसे, बट शी वॉज ऑलवेज लाइक आई एम सो ओके, लाइक मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है शादी करना या शादी में रहना, ऐसे बोलती थी वो, है ना। दैट मीन्स यूर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग, इसीलिए हम काउंट माई ब्लेसिंग्स करते हैं। Even if it is a morning cup of chai that you have, your coffee, for that say thank you. Thank you that आप नए दिन के लिए उठे. Thank you for the sunshine. Thank you for your Wi-Fi. Thank you for वो जो device आप use करते हो to log into Zoom. Thank you for the Zoom app that you have. Zoom app है तभी तो आप log in कर पा रहे हो, है ना, इस तरह से। Thank you for the ब्यूटिफुल फ्रेश वाटर दैट आई ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। सब लोग सुबह पानी तो पीते ही होंगे, आजकल गर्म करके पीते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर द एलिमेंट ऑफ फायर, जिसके कारण पानी गर्म होता है और आप वार्म वाटर या हॉट वाटर पीते हो, बड़ा मजा आता है सर्दियों में हॉट वाटर पीना, दैट वे। इस तरह काउंट माई ब्लेसिंग्स करना है, और रात को सोने के पहले पूरे दिन भर की जो चीजें हुई हैं उनको याद करना है। द थैंक यू फॉर दैट ब्यूटिफुल वॉक आई वेंट टू, थैंक यू फॉर दैट सनराइज दैट आई सॉ टुडे, बहुत सुंदर लग रहा था सन। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल सिटी जिसमें मैं रहती हूँ, आज मैंने देखा इतनी बसलिंग सिटी है, इतने लोग हैं, इतनी खुशियां मना रहे थे, न्यू ईयर का दिन था, बहुत खुशियां मना रहे थे, घूमने फिरने जा रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छे अच्छे कैप्स पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे। मतलब दिल्ली की सर्दी अभी लेवल अप हो गई है पिछले 2 दिन से, जब दोपहर को भी 12-13, मतलब कल तो 15-16 तक टेम्परेचर पहुंच गया था क्योंकि सन वाज शाइनिंग, बट इट्स वेरी कोल्ड। सो people are in their best of high fashion winter clothes, which is so beautiful, है ना। So
एडमिरेशन फॉर देम, एनर्जी अपनी अच्छी रख के हर एक चीज को, ये सब भी किया है। तो रात को आप अपने मैजिक रॉक जब करते हो तो उसमें याद करो दैट आई वाज सो हैप्पी टू सी सच हाई फैशन इन सो एंड सो प्लेस, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी द ब्यूटीफुल सनराइज एंड एक्सेट्रा। सो सारी चीजें, खाना बहुत अच्छा था, बहुत इजी इवनिंग थी, आपने कोई मूवी देखी, आपका कोई लाफ्टर का टाइम था, कोई फोन कॉल आया जिसमें आप हंस हंस के लोटपोट हो गए थे, उसको याद करो। एंड देन आप टाइम से सो गए, उसके लिए भी दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम स्लीपिंग ऑन टाइम, इट इज ओनली 9:30 एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग माई मैजिक रॉक प्रैक्टिस। उसके लिए भी थैंक यू बोल दो। जो चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे वो एक्सपैंड होगी आपकी जिंदगी में। सो ये उसमें से बेस्ट चीज निकाल के सोचाओ। दिस इज वॉट इज अबाउट टुडेज चैप्टर। नाउ वी गो टू द अदर बुक which is The Game of Life and How to Play It by the beautiful Florence Scovel Shinn। वो खुद इतनी सुंदर महिला थी, बहुत ही सुंदर थी वो, और मतलब इनसाइड आउट ब्यूटीफुल थी, और इतने अच्छे से उन्होंने लाइफ के सारे हैक्स को समझाया, एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हमको एक्सप्लेन किया। तो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं लव, जिसमें कल हमने एक एक्सपीरियंस किया था कि एक फीमेल थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया था, बहुत सालों से वो लोग साथ थे, और फिर वो फ्लोरेंस कॉवेल शिन के पास गई, बोलती है उसका ये हो जाए, उसकी रिलेशनशिप नहीं चलेगी उस औरत के साथ, उसने मुझे चीट किया है और मेरी हैप्पीनेस लेके वो किसी को अनहैप्पीनेस दे रहा है, इतना बड़ा चीटर है, ये है वो है ना। दैट वाज नॉर्मल, इस तरह का रिएक्शन। तो फ्लोरेंस कॉवेल शिन ने कहा कि फिर तुम प्यार तो नहीं करती उससे, तुम क्यों बोल रही हो बार बार दैट आई लव दैट गाय। यू डोंट, इफ यू लव, लव इज ओनली अनकंडीशनल, लव कंडीशनल नहीं होता है। चाहे किसी ने कुछ किया हो या नहीं किया हो आपके लिए, अगर आप प्यार करते हो तो वो अनकंडीशनल लव होता है। तो उन्होंने कहा दैट उसको ब्लेस करो कि जहां पे भी हो, वेर एवर ही इज। तो उसने ये करना शुरू किया, वेर एवर ही इज इन पीस एंड आई एम सेंडिंग लव। तो उसने बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी भेजी उसको, और फ्लोरेंस कॉवेल्शन ने उसको ये भी बोला था कि आप अपने आप को बोलो that I'm sending him love and if he is the right person in the divine way for me, अगर तो वो सही इंसान है मेरी जिंदगी के लिए तो वो वापस मेरी जिंदगी में आएगा या फिर इक्विवेलेंट आएगा। तो उसने ये टर्म, क्योंकि उसको वो ही बंदा चाहिए था, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे ऐसे प्रे करूं कि वो आ जाए, नहीं तो कोई और आ जाए, मुझे तो वो ही चाहिए। फिर उसको महीनों लग गए इस चीज के लिए, फिर उसके दिल से आया कि नहीं ठीक है, ईदर हिम और इक्विवेलेंट एंड नाउ आई एम रेडी, और वो दिल से उसको ब्लेसिंग भेज रही थी। और उसके बाद फाइनली वही की वही बंदा वापस आ गया, और हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई, है ना। मतलब एक हफ्ते के अंदर दैट गाय आस्क्ड हर टू मैरी, एंड उसमें लिखा हुआ था बाद में कि उससे ज्यादा कमिटेड कोई पति नहीं हो सकता। वो इतना अच्छा निकला उसके लिए, क्योंकि वो यही बोल रही थी ना बार बार कि अगर वो मेरी आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है तब तो वो मेरी जिंदगी में आ जाए, अगर वो अच्छा नहीं है तो इक्विवेलेंट आ जाए उससे कोई, बट आई विल स्टिल सेंड हिम लव, अनकंडीशनल लव एंड हाई एनर्जी टू हिम वेर एवर ही इज। तो इस तरह फिर उसके बाद फ्लोरेंस कॉवेल्शन ने बताया है कि कोई भी इंसान, आपका ये रिलेशन है, वो रिलेशन है, ये है ऑफिशियल है, पर्सनल है, हर इंसान और हर एक्सपीरियंस एक टीचर होता है। हर इंसान एक टीचर के रूप में आता है, क्योंकि वो आपको अपनी जिंदगी के बारे में सिखाता है। तो इस लड़की को बिल्कुल भी प्यार और इन सब का मतलब, शी वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन फॉर हर हैप्पीनेस, कि वो मेरे लिए कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो उसको खुशियों का मतलब ही नहीं पता था, उसको ये लगता था मेरा बॉयफ्रेंड ये करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, बॉयफ्रेंड ऐसे कर लेगा तो खुश हो जाऊंगा, को हो जाऊंगी। तो उसको अपने आप से कोई वो नहीं था, शी डिडंट हैव अ सेल्फ आइडेंटिटी एट ऑल। स्लोली शी बिकेम दैट वन पर्सन हु वाज सुपर हैप्पी इन लाइफ, क्योंकि उसने अपने आप को खोज लिया था इस एक्सपीरियंस से। शी हैड फाउंड हर सेल्फ। So it's very important for us to find ourselves and to find our own inner peace and happiness. ये कल का experience था. From there we will carry on reading for today. And the very lovely Meetu Gupta from Kolkata is reading for us. Good morning, Deepti. Very good morning. Suffering is not necessary for man's development. It is the result of violation of spiritual law. But few people seem able to rouse themselves from their soul sleep without it. When people are happy, they usually become selfish and automatically the law of karma is set in action. Man often suffers loss through lack of appreciation.
I knew a woman who had a very nice husband, but she said often, I don't care anything about being married, but that is nothing against my husband. I am simply not interested in married life. She had other interests and scarcely remembered she had a husband. She only thought of him when she saw him. One day, her husband told her he was in love with another woman and left. She came to me in distress and resentment. I replied, it is exactly what you spoke the word for. You said you did not care anything about being married. So the subconscious worked to get you unmarried. She said, oh, yes, I see. People get what they want and then feel very much hurt. She soon became in perfect harmony with the situation and knew they were both much happier apart. When a woman becomes indifferent or critical and ceases to be an inspiration to her husband, he misses the stimulus of their early relationship and is restless and unhappy. A One man sec, Neetu, we'll just take a pause because that's another experience that you're going to read now. So इसमें वो है that एक फीमेल थी वो मतलब उस बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, बहुत अच्छी मैरिज थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट कहती है कि आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट द मैरिज, आई डोंट वांट टू स्टे इन मैरिज, बिना बात के, जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, कोई रीजन नहीं था उसका, बट उसको शुरू से यही लगता था, लाइक कि आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट बीइंग मैरिज एंड देन वन फाइनल डे उसका हस्बैंड आया एंड देन ही टोल्ड हर दैट ही इज इन लव विद समवन एल्स. सो इसमें देन शी वाज वेरी मच डिस्ट्रेस कि हाउ कैन ही डू लाइक दैट एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला. देन शी वेंट टू फ्लोरेंस कॉवल्शन और वहां पे उन्होंने बताया, तो फ्लोरेंस कॉवल्शन ने उनको बताया दैट तुम ही तो बोलती थी दैट आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू स्टे इन मैरिज, आई डोंट केयर अबाउट दिस मैरिज एंड ऑल दैट. सो वो चला गया वापस. तो फिर देन शी सेड ओ यस आई सी दैट हाँ, लोगों को वही जिंदगी में मिलता है जो उनको चाहिए होता है, बिकॉज उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इम्प्रेस कर दिया था फैक्ट दैट मुझे आई डोंट वांट टू स्टे इन मैरिज एंड मैरिज मीन्स नथिंग टू मी. जबकि उसका बहुत अच्छा हस्बैंड था, बहुत ध्यान रखता था उसका, मतलब ऑलवेज नाइस एंड दैट वे. सो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि बी वेरी केयरफुल. इससे लर्निंग क्या मिल रही है हमको, दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू थिंकिंग. अगर आप इनसिक्योरिटी में, कई फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं, इट इज नॉट लाइक उनका जमाना 1930 बहुत अलग था. आजकल ऐसी मेल्स बीइंग मोर इनसिक्योर देन फीमेल्स बीइंग इनसिक्योर. अगर कॉन्स्टेंटली आप फियर में रह रहे हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ चली जाएगी, या मैन फियर में रहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड, या मतलब मेरी फीमेल रहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड चला जाएगा, वो इधर उधर ज्यादा ताका-झाकी कर रहा है, देन दैट थिंग विल कम ट्रू. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को सही और गलत पता नहीं होता. सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं पता है. ये पता है कि जो थॉट आए हैं उनको पूरा करो, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली क्रिएशन के लिए बना हुआ है, ताकि आप अपनी जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट करो, इसलिए है. तो अगर बार बार इनसिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, बार बार अगर वो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ये सोचेगा मेरी बीवी ज्यादा ही सुंदर लग रही है, वो इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी, उसको देख रही है ये कर रही है, या लड़की ये सोच रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा फियांसे या जो भी इधर उधर ताक झाक ज्यादा ही करता है, तो दैट दे विल लूज ईच अदर, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में इनसिक्योरिटी मीन्स सेपरेशन, right? Insecurity means that the person is not caring enough for you, is caring about someone else, which is not right. So that person will actually do that. So ऐसी चीजें भी हम अट्रैक्ट करते हैं. तो ये पावर सबकॉन्शियस माइंड की जो है, इसमें जो मैं बोलती हूँ ना, इसके वो घोड़े की लगाम पकड़ के रखो. आपके विचार क्या आ रहे हैं, आपके शब्द और आपके इंटरनल टॉक किस तरह की हो रही है, वो टॉक सिर्फ वो ही करो दैट यू वांट टू सी हैपन इन योर लाइफ, दैट कॉन्स्टेंटली ब्लेसिंग, हीलिंग एंड प्रॉस्परिंग. तभी तो इन्होंने पहले चैप्टर में हमको ये समझा दिया कि यूज योर लाइफ, योर वर्ड्स, योर थॉट्स एंड योर एक्शंस ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर, फॉर नथिंग एल्स.
So just see, are you doing it out of fear and are you doing it out of faith? जो उन्होंने पिछले चैप्टर में हमको समझाया लॉ ऑफ कर्मा में। आर यू डूइंग इट आउट ऑफ फेथ? नहीं, उसमें कास्टिंग योर बर्डन में समझाया था ना, दैट कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, कोई डिसीजन कर रहे हो, क्या आप फेथ से कर रहे हो, क्या आप फियर से कर रहे हो? 2F समझाए थे उन्होंने हमें, फेथ एंड फियर। अगर आप फेथ से कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। फियर से कर रहे हो तो उसमें दूसरा स्टेटमेंट डाल दो, that I'm so happy and I'm so satisfied, content and so comfortable, swimming. Like if you're fearing that, अगर आपको fear लग रहा है लॉस ऑफ जॉब का, कि मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरी नौकरी छूट जाएगी, तो फिर ऐसे में आप कॉन्स्टेंटली, आई एम सुपर सिक्योर इन माई जॉब एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट परफॉर्मेंस एंड आई एम डीपली अप्रिशिएटेड फॉर दैट, है ना? इस तरह का थॉट आप कर दो। जैसे कोई भी चीज हो रही है, किसी से आपका रिश्ता में कुछ वो हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप विद सो एंड सो पर्सन। So just opposite, give an opposite idea to your subconscious mind. That is the best way to actually say कट कट कट, जो हम नॉर्मली करते हैं ना, कोई भी अगर गलत चीज मुंह से निकल जाती है या कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलते हैं ना कट कट, नो 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 नो, दैट्स नॉट ट्रू। सो इंस्टेड ऑफ दैट उसका ऑपोजिट थॉट आप प्लांट कर दो, है ना? दूसरा बीज बो दो, ये वाला बीज अपने आप हट जाएगा जो आपने गलत देखा था या सुना था। दूसरा बीज बो दो उसको, and everything will start falling into place. Okay, that's what ये वाला एक्सपीरियंस है। हम तो इसमें एक और चीज लिखी हुई थी इसके पहले वाले पैराग्राफ में, कि अगर जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी ना तो इंसान सेल्फिश हो जाएगा। Like if there is no suffering in life, if it is only happiness, 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 then the person will become very arrogant and selfish, and then how will they coexist together? इसीलिए भगवान ना कभी कभी कुछ कुछ देते रहते हैं कि अब ये वाली प्रॉब्लम है, अब थोड़ा ये वाली प्रॉब्लम दो। लेकिन जब वो स्टेट आती है, like for all of us, we must be experiencing, most of us, I'm not sure all of us, that now we will not, like even if there is constant bliss and happiness in our lives, mostly we have learned how to create constant bliss and happiness. Soul sleep का नाम दिया है constant bliss को फ्लोरेंस कॉवल्शन ने, सोल स्लीप, है ना? सोल मतलब आत्मा, स्लीप मतलब सोल स्लीप। दैट कांस्टेंट ब्लिस में हो, आप किसी भी चीज से ना बहुत अफेक्टेड नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आई कैन वेरी इजिली ओवरकम इट, मुझे पता है कैसे ओवरकम करना है, दैट वे। तो सोल स्लीप में तो लोग रहते नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सफरिंग भगवान देते रहते हैं ताकि हम सेल्फिश ना बने। नहीं तो एकदम सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाएंगे, जी मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा ये मेरा वो, क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया ना। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते हम जिंदगी के मायने समझने लग जाते हैं, और हमको पता है कि हमने अपने मेरिट पे वो हैप्पीनेस क्रिएट की अपने लिए, और फिर उसके बाद एरोगेंस चला जाता है। बिकॉज वैसे भी आपके कहते हैं ना, एनर्जी जब मूव अप होती है मूलाधार से स्वादिष्ठान मणिपुर हार्ट चक्रा तक आते आते दिल बदल जाता है, और दिल के ऊपर जब एनर्जी जाती है, जो हमारा लाइक विशुद्धि चक्र, ज्ञान चक्र, इसमें आप गिवर बन जाते हो। देन यू आर अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर दिस अर्थ। सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, है ना? इसीलिए हमको जो भी इश्यूज लेके हम पैदा हुए थे, कई लोग हेल्थ इश्यूज लेके पैदा हुए हैं, कई लोग रिलेशनशिप इश्यूज लेके पैदा हुए हैं, कई लोग मनी के स्ट्रगल के साथ पैदा हुए हैं। तो ये सब इश्यूज हमको इसीलिए है कि ये आपके इशू हैं, इसको ओवरकम करो और दुनिया को सर्व करो। ओवरकम करो, दुनिया को सर्व करो। वो इश्यू को ओवरकम करके हम लोग बहुत हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी जोन में चले जाएंगे, एंड दैट इज द वे टू डू इट। वो चक्रास के फॉर्म में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बुद्धिज्म में उसको 9 वर्ल्ड्स के फॉर्म में समझाया हुआ है, बोधिसत्वा, बुद्धाहुड, है ना? शुरू शुरू में नहीं आता है वो। जब अपनी सफरिंग को आप ओवरकम करोगे अपने मेरिट पे, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने विचार शक्ति से, वाक शक्ति से, है ना, और कर्म शक्ति से जब आप उनको ओवरकम करोगे, तो थॉट, वर्ड्स एंड एक्शंस, देन यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, एंड देन यू स्टार्ट वैल्यूइंग एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड यू डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। देन यू बिकम ऑफ सर्विस टू पीपल। इसका मतलब गोल क्या है? टू बिकम द सर्विस टू पीपल, टू बिकम द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर दिस यूनिवर्स, है ना? उसके लिए ही हमको ये इश्यूज आए हैं, सो दैट वी बिकम स्ट्रॉन्गर, बेटर पीपल। सो हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा वाला एक्सपीरियंस। A man came to me dejected, miserable, and poor. His wife was interested in the science of numbers and had him read. It seems the report was not very favorable, for he said,
My wife says I will never amount to anything because I am a 2. I replied, I don't care what your number is. You are a perfect idea in divine mind, and we will demand the success and prosperity which are already planned for you by that infinite intelligence. Within a few weeks, he had a very fine position, and a year or two later, he achieved a brilliant success as a writer. No man is a success in business unless he loves his work. The picture the artist paints for love of his art is his greatest work. The potboiler is always something to live down. Quote, if we did all the things we were capable of doing, we would literally astound ourselves. Unquote. Thomas Edison. No man can attract money if he despises it. Many people are kept in poverty by saying, money means nothing to me, and I have a contempt for people who have it. This is the reason so many artists are poor. Their contempt for money separates them from it. I remember hearing one artist say of another, he is no good as an artist. He has money in the bank. Yeah, so this is एक और experience है इसमें जिसमें एक husband wife थे. The wife believed in numerology, है ना, the science of numbers जो होती है न्यूमरोलॉजी. तो उसके हस्बैंड का मे बी कुछ ब्रेकडाउन हो रहा होगा, तो वो अपने हस्बैंड को लेके गई और कहती है कि आई बिलीव इन नंबर्स अ लॉट. और उसको वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लेके गई. न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसको बताया कि देखो तुम ना नंबर 2 हो, तो तुम्हारे पास ना सक्सेस नहीं आएगी. मतलब नंबर 2 वालों को सक्सेस नहीं आती है. Imagine. So this man was so deeply hurt. He was so capable, everything, But then अब उसके दिमाग में ये गलत चीज फिट कर दी. That number 2 people don't achieve. They have a lot of struggle in life and they don't achieve success. Now that man was so dejected, then he went to Florence Scovel Shinn. फ्लोरेंस कॉवल शिन को उन्होंने बताया कि मेरी बीवी मुझे लेके गई थी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास. वहां पे उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि तुम नंबर 2 हो, तो तुम्हारा तो सक्सेस नहीं आ सकती, तुम्हारी लाइफ में ऐसा ही रहेगा, स्ट्रगल रहेगा. तो फिर फ्लोरेंस कॉवलशिन ने उसको बहुत प्यार से समझाया और कहा दैट नहीं, वी विल डिमांड द सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी वी हैव ऑलरेडी प्लान फॉर यू बाय दैट इन्फिनिट इंटेलिजेंस. मतलब भगवान के यहाँ पे इट्स ओनली लाइफ वर्ड. लाइफ वर्ड का मतलब होता है देयर सक्सेस, देयर इज लव, देयर इज प्रोस्पेरिटी, देयर इज जॉय, देयर इज लाफ्टर, देयर इज अचीवमेंट ऑफ ऑल द ड्रीम्स एंड गोल्स. है ना. भगवान के सामने हम क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना, हमें पता है कि हर चीज के, हर समस्या का समाधान वहां पे मिल जाएगा. आप प्रे बस करो, हो जाएगा. तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो गॉड विद इन है, ठीक है. सो शी सेड दैट वी विल डिमांड द सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी. जो जो भगवान इन्फिनिट इंटेलिजेंस हमारे अंदर जो भगवान है वो जरूर देंगे. एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस नंबर 2 और 1 और वट एवर. यू आर अ परफेक्ट आइडिया इन द डिवाइन माइंड. सो इसलिए आप उन सब फालतू की बातों को मत करो. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको 31 को भी बोला था कि कोई इंस्टा पोस्ट आप लोग नहीं देखोगे. 2025 ईयर आपके लिए ये स्कॉर्पियंस के लिए ऐसा होगा, टॉरस के लिए ऐसा होगा, पाइसियन के लिए ऐसा होगा, केप्रिकॉर्न के लिए ऐसा होगा. सब फालतू की बातें होती है. ठीक है. इंसान अपनी किस्मत अपने सबकॉन्शियस माइंड से बनाता है. ये साइंस है. सो इफ यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट नंबर कि इस नंबर से मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो आज की तारीख में कोई बीमार नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई नहीं होता. नंबर गेम का एक्सेस सबको है. इंटरनेट फ्री है सबके लिए, है ना. सबके पास 5G डेटा होते हैं फोन में, सबके पास यूट्यूब है, सबके पास इंस्टाग्राम है. आप यूट्यूब पे जाओ और देखो व्हाट इज द ईयर ऑफ कैंसर और केप्रिकॉर्न लाइक 2025. आपको 50 वो मिल जाएंगे यूट्यूब वीडियोस. सो इट्स अ वेरी एक्सेसिबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दैट यू गेट. बट सब बेकार होती है प्लीज. हाँ, इसमें किसी में कोई वो नहीं होता है. आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो अपने थॉट से, और वो कीड़ा डाल देते हैं दिमाग में कि 2025 में ना मेरे बहुत हेल्थ के चैलेंजेस रहेंगे, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि 2025 मेरे लिए ऐसा रहेगा. सो इट्स लाइक, आर यू किडिंग? हाउ कैन वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज कमिंग ट्रू? सो चेंज योर थॉट. सो इस आदमी ने क्यों, ये आदमी बंदा इंटेलिजेंट था, है ना.
इसने फालतू की चीजों पे विश्वास नहीं किया, वो सीधे फ्लोरेंस कॉवल्शिन के पास गया और उसने बताया मेरी बीवी मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी और वहां पे मेरा नंबर 2 निकला है, बोला है कि मैं सक्सीड नहीं करूंगा जिंदगी में कभी और मेरा बहुत स्ट्रगल रहेगा। तो इन्होंने एकदम ब्रेन वॉश कर दिया उसका। इन्होंने कहा कि देखो अब हम सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी डिमांड करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से और जरूर मिलेगा हमको सफलता। एंड विद इन अ फ्यू वीक्स उसको बहुत हाई पोजीशन की जॉब मिल गई, है ना, हाई पोजीशन। और 1-2 साल के बाद उसको ब्रिलियंट सक्सेस मिली एज अ राइटर, है ना। सो यही लिखा हुआ है, नो मैन इज अ सक्सेस इन बिजनेस अंटिल ही लव्स हिज वर्क। अपने काम से प्यार करो, काम के लिए कभी भी कंप्लेन मत करो कि आवर्स ज्यादा हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काम का प्रेशर है। नेवर से ऑल दीज थिंग्स, ओके। से दैट माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, इजी एंड एफर्टलेस एंड आई हैव अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। क्यों बार बार ऐसे सोचना, काम का प्रेशर बोला तो अब प्रेशर आना शुरू होगा। तो ये बोल रहा ही नहीं है, हमको दिमाग में लेके ही नहीं आना है ना ऐसी चीजें। बस आपको ये बोलना है मैं तो मौजे करने जाती हूँ ऑफिस और मौजे ही करते हुए आती हूँ और मुझे इसके लिए बहुत वंडरफुल, है ना, वो वंडरफुल पे वाला। आई हैव अ वंडरफुल वर्क इन अ वंडरफुल वे एंड आई गिव वन फॉर विच आई गिव वंडरफुल सर्विस फॉर अ वंडरफुल पे। तो आप ये बोलते रहो, लिखो, बोलो, पढ़ो इसी को 100 बार, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपके काम में डिविनिटी आ जाएगी, आपके प्रमोशन हो जाएंगे, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको वही काम और वही प्रोजेक्ट मिलेगा, द थिंग दैट यू लव द मोस्ट। एंड यू विल स्टार्ट डेवलपिंग अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस कि आप पर्सनल लाइफ को भी बहुत आराम से देखोगे। बोल के तो देखो आप, है ना, इतने अच्छे अच्छे टूल्स हमको इसमें मिले हुए हैं, लेकिन अगर हमको करना तो पड़ेगा ना उसको। तो अगर आपको जरा भी काम में प्रेशर लगता है, जरा भी आपको लगता है वर्क इज ओवर कंज्यूमिंग मी, so in that case I have a wonderful work in a wonderful way and I give wonderful service for a wonderful pay, or I have a wonderful business in the wonderful way for which I give wonderful service for a wonderful pay। तो आपने इतना वंडरफुल कर दिया कि सबकॉन्शियस माइंड में वंडरफुल ठूस ठूस के भर गया, है ना। नाउ इट हैज बीन हैमर्ड, इट हैज बीन टैटूड इन द ब्रेन, वंडरफुल 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 वर्क, वंडरफुल पे, वंडरफुल सर्विस, वंडरफुल दिस, वंडरफुल दैट, वंडरफुल दिस, वंडरफुल दैट। सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेशन से क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपने रिपीटेशन किया, 7 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपके वर्क सर्कमस्टांसेस में बदलाव आना शुरू हो गया है ना। इसी तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे भी ये जो बंदा था, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि आर्टिस्ट की पेंटिंग कभी भी पेंटिंग होने के कारण अच्छी नहीं होती है। आपने देखा है कई लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हैं, न सिर न पैर उसमें, है ना, समझ ही नहीं आता, बस वो ऐसे लगता है कि कलर्स को स्प्लैश कर दिया कैनवस में, कुछ मायने नहीं होते उसके, कुछ मतलब नहीं होता, बट स्टिल इट इज सोल्ड फॉर लाइक से 3 lakhs। वो पेंटिंग 3 लाख रुपए की बिकती है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट ने पेंटिंग करते वक्त उसके अंदर इतना ज्यादा प्यार भरा हुआ था कि उस एनर्जी ने पैसे अट्रैक्ट किए उस आर्टिस्ट के लिए। सो इट वॉज नॉट अबाउट द पेंटिंग, इट वॉज अबाउट द एनर्जी जो आर्टिस्ट ने दी थी लव की उस पेंटिंग को बनाने के लिए, दैट वे। सो इसमें लिखा हुआ है ना, द पिक्चर द आर्टिस्ट पेंट्स फॉर लव ऑफ हिज आर्ट इज हिज ग्रेटेस्ट वर्क। तो जो प्यार मोहब्बत वो देता है अपने काम को, ये उसका सबसे बड़ा वर्क होता है ना। सो दैट इज वॉट यहाँ पे जो थॉमस एडिसन ने बोला, इफ वी डिड ऑल द थिंग्स वी वर केपेबल ऑफ डूइंग वी वुड लिटरली एस्टाउंड आवरसेल्व्स। तो हमारे अंदर इतनी ज्यादा केपेबिलिटी है। इसीलिए जो कोई भी चीज, अगर आपको किसी की बात लाइफ वर्ड नहीं लग रही कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप उस पर प्लीज विश्वास मत करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। सो यू हैव टू इंस्टेड कीप टेलिंग टू योर सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द क्रिएटर। जैसे कल नेहा का हम वो नेहा की बिटिया का हमने एक्सपीरियंस पढ़ा था। इतनी छोटी सी बेटी है, शीशे के सामने खड़े होके पूरे दिन बोलती है आई एम द बेस्ट, आई नो हाउ टू विन एंड आई एम सक्सेसफुल। वो इतनी सी 6-7 साल की बच्ची है। आप प्लीज उस पे ग्रुप पे, कम्युनिटी ग्रुप पे, सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका एक्सपीरियंस पढ़िए, है ना। तो नेहा बोलती है वो नॉन स्टॉप ये रिपीट करती है पूरे दिन, शीशे के सामने स्टाइल मारेगी और वो बोलती है दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम अ विनर, आई नो हाउ टू सक्सीड, आई एम सक्सेसफुल, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, हर चीज में सक्सेसफुल हूँ। उसको एक और गोल्ड मेडल मिल गया ये कह कह के। अब सोचो इतने सा बच्चा है, उसको ये बात समझ में आ गई, आंटी और अंकल को समझ में नहीं आती है ये बात, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो हमको यही तो करना है, यही करना है कि अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करना है। पता नहीं उसमें क्या गार्बेज भी भरा हुआ है पिछले जन्मों से, क्या हमने गलत देखा किया, जो भी सोचा, टेंशन में रहे, इमोशनल लेवल पे बहुत लो थे, कोई बात नहीं। पावर तो इस मोमेंट में है ना, पावर ऑफ नाउ में।
तो इस वाले मोमेंट में एम्पावरमेंट डाल दो पूरी, इस मोमेंट में वो सोच डाल दो दैट आई एम गोइंग टू मेक इट द बेस्ट वे थ्रू. I will be the winner. I know how to win. I know only how to win. I know only how to win. I know only how to win. I know how to win. I know only how to win. I'm successful in all areas of my life. Success comes to me easily and comfortably. I'm so comfortable being super successful. I'm so comfortable being the icon in my field. I'm so comfortable with all my travels. I'm so happy with my work. I love my work. My work is so easy. It gives me plenty of money. I have become so rich and prosperous. Karo fake ऐसे. Fake it till you make it. You will become like that. I attract only love from every person I meet. All my relationships are so amazing, so fulfilling. I'm really loving it. I love it. करते रहो, करते रहो, करते रहो. आप देखोगे कि ये being आपका हो जाएगा. And then there is no looking back in your life. If you want a revolution in the area of health, I'm so happy with my health. Every cell of my body, is in harmony. मेरा हर एक सेल इतना ज़्यादा healthy है, इतनी जल्दी heal होता है, इतनी जल्दी recover होता है. I love every organ of my body. All my organs are functioning so optimally. Sometimes there is a breakdown, but then they quickly recover within no time. I love this amazing machinery of my body. इतनी अमेजिंग मशीन है. हार्ट मेरा काम करता रहता है, मेरी किडनीज इतनी फर्स्ट क्लास है. आई रियली लव माई किडनीज, आई लव माई लंग्स, आई रियली लव एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. आई लव माई विजन, आई लव द आईज, इतनी सुंदर सुंदर चीजें दिखती है. सेंस ऑफ स्मेल मुझे बहुत पसंद है. आई रियली लव इट. आई लव माई बॉडी. आई लव दैट एनर्जी आई फील ऑल द टाइम. आई लव माई ब्रेन. इट इज सो अमेजिंग. इट इज हेल्पिंग मी टू क्रिएट द लाइफ. इतनी अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिली हैं क्योंकि मैंने क्रिएट किया है अफर्मेशंस के थ्रू, सेल्फ टॉक के थ्रू. मैंने लव एंड अप्रिशिएट करना सीखा ब्रेन के कारण. आई लव माई ब्रेन. माई ब्रेन इज सो केपेबल. और मेरी मेमोरी का तो क्या बोलना. माई मेमोरी इज सो अमेजिंग. कुछ भी चीज मैं अच्छी देखती हूँ, फट से वो आई इट गेट्स कैप्चर्ड इन टू माई ब्रेन. Anything good I see, the sound of the birds, the laptop I have, how to operate it, I just remember. I just learn it once and then I remember how to do it. I cook so well, I'm so disciplined. I really love the way I am. This is what a self-talk has to be like. Not anything else other than this. So it is only for growth that you have to use your life, and this we have to remember. Slowly, slowly, रोज सुबह हम 6 बजे इतनी प्यारी प्यारी किताबें पढ़ेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस वैसा हो जाएगा, है ना. फिर दिन में गिरेंगे तो दोबारा से सेशन तो यूट्यूब पे होते हैं, दोबारा से सुन लिया करो. बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत गुड एनर्जी मिलेगी, समझ में आने लग जाएगा. फालतू की चीजें सोचने से अच्छा है कि अच्छी चीजें सुनो, isn't it? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप चल रही होती है, एवरी मोमेंट, एवरी बिट ऑफ अ सेकेंड. तो सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड हो रहा है, चेतन मन में जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो हमारी 3D रियलिटी में एक्शन रिप्ले होती है, मतलब वो हमको असलियत में नजर आएगा. सो दैट इज वॉट. तो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि दिस इज द रीजन वाई सो मेनी आर्टिस्ट आर पुअर, बिकॉज द कंटेम्प्ट ऑफ द मनी सेपरेट्स में लिखा है ना. मनी मीन्स कोई बंदा बोलता है अगर, अरे पैसा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा, मनी मीन्स नथिंग टू मी. अरे ऐसे कैसे? मनी से कितना मजा आता है ना. आप ट्रैवल कर सकते हो, आप लग्जरी एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे वोलन क्लोथ्स बहुत गर्म वाले खरीद सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो. पैसा बहुत मजे देता है, डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंसेस देता है, ऐसे ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करता है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे. पैसे के लिए ऐसे बोलना, मनी मीन्स नथिंग टू मी एंड आई हैव अ कंटेम्प्ट फॉर पीपल हु हैव इट. पैसा दिमाग खराब कर देता है. क्या पैसा, हमारी जिंदगी में भी तो पैसा आ रहा है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा. हम तो इतने बड़े दिल के, खुले दिल से देते भी है, इजंट इट? कहाँ दिमाग खराब हो रहा है? मैं तो सोचती ही नहीं हूँ पैसे देने के चक्कर, मतलब उसके बारे में. So when you start, like receiving money, you also want to give money. So it is like that. तो ऐसी चीज बोलना, अगर कोई इंसान ऐसे बोलता है कि पैसा दिमाग खराब कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, so many things that people say about money. So it says this is the reason for poverty. ऐसे इंसान के पास जहाँ पे पैसे के लिए नेगेटिव एनर्जी जा रही है, पैसा रहेगा कैसे उसकी जिंदगी में? पैसा एनर्जी होता है, पैसा नहीं रहेगा. एनर्जी मतलब यू एंड मी एनर्जी वाइज आर वन. सो मनी एंड दैट पर्सन एनर्जी वाइज दे आर वन. वो पर्सन इतना लो एनर्जी में है पैसे को लेके दैट उसके पास पैसा रहना ही नहीं चाहेगा बिल्कुल, है ना. तो वो हमेशा पॉवर्टी में ही रहेगा, पुअर रहेगा. तो इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई रिमेंबर, फ्लोरेंस कॉवल्शन बोल रही हैं कि आई रिमेंबर वन आर्टिस्ट सेइंग टू अनदर, ही इज नो गुड एज एन आर्टिस्ट, इट्स जस्ट दैट ही हैज मनी इन द बैंक.
कि वो आर्टिस्ट अच्छा नहीं है, बस वो पैसे वाला आर्टिस्ट है, बस इसीलिए सब उसको पूछते हैं और वो बड़े बड़े एग्जीबिशन करता है, एज एन आर्टिस्ट वो अच्छा नहीं है ना। ऐसे इस तरह की बातें करना कितनी गलत बात है किसी के बारे में। तो इसमें यही लिखा हुआ है, द एटीट्यूड ऑफ माइंड सेपरेट्स मैन फ्रॉम हिज सप्लाई। तो हमारे दिमाग में जो एटीट्यूड है ना, कंजूसी करो, जोड़ के रखो, मत करो ऐसे, कॉम्प्रोमाइज करो, ये करो वो करो, सो इट सेज दैट उसके पास पैसा आएगा ही नहीं ना। वो अपने सप्लाई से सेपरेट है। सप्लाई तो यूनिवर्स दे रहा है, तो आप निकालोगे तभी तो सप्लाई वापस आएगी। तो सही चेन होती है, पैसा सर्कल में घूमता है ना। पैसा टिक के नहीं रहता, लक्ष्मी चंचल होती है। आप टिका के रखो, वो टू इधर कोने से एक पाइपलाइन बन जाएगी और पैसा चला जाएगा। आप बचा के रख ही नहीं सकते पैसे को, पैसा टिक के रहता ही नहीं है। पैसा कांस्टेंट सप्लाई सर्कल है। कहते हैं ना, मनी इज ऑलवेज सर्क्यूलेटिंग इन माई लाइफ, जिन लोगों को पैसा चाहिए होता है। सो इट्स ऑलवेज सर्क्यूलेटिंग। सर्क्यूलेटिंग का मतलब सर्कल में चलता है, निकलता है फिर वापस आता है, निकलता है वापस आता है, निकलता है वापस आता है ना। इसी तरह से चलता है। और जो निकालते रहते हैं उनके पास भर भर के पैसा आता है, इसी वजह से, क्योंकि उनका वो स्टिंजी वाला एटीट्यूड ही नहीं है। सो इसमें यही लिखा हुआ है, द एटीट्यूड जो हमारे दिमाग में होता है वो हमारी सप्लाई से हमको मतलब सेपरेट कर देता है ना। तो अब सेलिब्रेट वर्ड बोला है तो सेलिब्रेट योर सप्लाई। मैजिक ही हो गया। ही मस्ट बी इन हार्मनी विद द थिंग इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इट। अगर आपको कोई भी चीज अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है, आप बहुत प्यार दो उसको, प्यार देते जाओ देते जाओ देते जाओ, आपकी जिंदगी में वो लपक के आएगी, टपक 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 के लपक के, और वापस आ जाएगी। एंड इट विल बी सो इजी एंड एफर्टलेस दैट विल बी अमेज्ड एट द वे इट has come into your life. That is how it is, है ना। So thank you, Meetu. We'll be reading only so much today. Thank you for your beautiful voice and for your reading.